हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into his presence with singing. Know the Lord, he is good. It is he who made us, and we are his. We are his people and the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him, bless his name, for the Lord is good. His steadfast love endures forever, and his faithfulness to all generation. My church, my congregation, my people, I greet you in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ, as we all are here in this worship service, through the media and whatever equipment we have. जो कुछ आज हमारे पास है, हम आज वर्शिप सर्विस के अंदर हम लोग सब शामिल हुए हैं और परमेश्वर इस वर्शिप के दौरान हम सबको आशीष दे। आइए आज की वर्शिप शुरू करने से पहले हम लोग दुआ मांगे। Thank you, dear gracious Heavenly Father, for the wonderful morning that you have given us and added in our lives to glorify your name, to adore your name, to magnify your name, and to worship your name. Lord, as we all are gathered together through media, and thank you for the such wonderful platform that you have given us, Lord. And Lord, today's worship and today's meditation be acceptable unto you, and your presence will be among us. And Lord, I commit each and every one of us to your mighty hand, and Lord, bless us abundantly. And Lord, let your glory be shine upon us. Thank you, God, for hearing our prayer as we start this worship service. Lord, show yourself to us, and Lord, be with us throughout this worship service, Lord. Thank you, God, for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. अजीजों, ये वक्त होगा कि हम अपने पहले गीत को गाएंगे और जो पाया जाता है इंग्लिश सॉन्ग नंबर 55, Praise to the Lord the Almighty. Praise to the Lord the Almighty. We will sing our first song to glorify God, which is found in English, hymn number 55, Praise to the Lord the Almighty. Let us glorify God and let us enjoy his worship. King of creation, oh my soul, praise him, for he is thy health and salvation. All he who hear, now to his temple draw near. Join me in glad wondrously reigneth, shielded thee under his wings, he so gently sustaineth. Hast thou not seen how thy desires have been granted in what he ordained? Praise to the Lord who doth
prosper thy work and defend thee. Surely his goodness and mercy your daily attend thee. Wonder anew what the Almighty can do. If it is love he befriend thee. Praise to the Lord, oh let all that is in me adore him. All that hath life and breath come now with praises before him. Let the Amen sound from his people again. Gladly forever adore him. Amen. परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर गीत के लिए। अब ये वक्त होगा अजीजों कि हम अपोस्टल्स क्रीड एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, जो कि हिंदी में पाया जाता है पेज नंबर 1 और इंग्लिश में ये पाया जाता है 738। We will confess our faith before God by reading Apostles' Creed, which is found in English 738 and in Hindi page number 1. Let us unite in this historic confession of Christian faith. I believe in the God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried. The third day he rose from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. My friends, for today's responsive reading has been taken from the book of Psalms, number 48, verses beginning from 1 to 14. आज का जो उत्तरवादी पाठ लिया गया है वो लिया गया है भजन संहिता, उसका 48वां भजन 1 से लेकर 14वां वचन तक, जो कि पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे मिस्टर जॉनसन। एंड दिस रेस्पॉन्सिव रीडिंग विल बी लेड बाय मिस्टर जॉनसन। और उसके बाद हम ग्लोरिया पैट्रिया एक साथ मिलकर गाएंगे। Let us join in this responsive reading. परमेश्वर में आप सबों को जय मसीह की। आइए पाक कलाम में से निकाले मेरे साथ पढ़ने के लिए भजन संहिता 48, भजन संहिता 48 उसका 1 से 14 तक पढ़ेंगे। पहली आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा, दूसरी आप मेरे साथ पढ़ेंगे और आखिरी सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठा हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। वहाँ कपकपी ने उनको आ पकड़ा और जच्चा की सी पीड़ा उन्हें होने लगी। तो पूर्वी वायु से तर्शीश के जहाजों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरे स्तुति पृथ्वी के छोर तक होती है। तेरे दाहिने हाथ धार्मिकता से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हों।
सियोन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्मट को गिन लो। उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीड़ा के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको। आइए हम साथ पढ़ें। क्योंकि ये परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर अपने पाक Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Now it's time to put our supplications before God. We will pray. हम परमेश्वर से प्रार्थना मांगेंगे, अपने विनती निवेदनों को परमेश्वर को देंगे और हम प्रार्थना करेंगे तमाम उन लोगों के लिए जो कि बीमार हैं, हमारे चर्च के लिए, हमारे चर्च की नीड्स के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए और सबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। Let us join in this prayer. हम सब इस प्रार्थना के अंदर शामिल होंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर पिता से दुआ मांगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। आप महान परमेश्वर हैं, सर्वज्ञ सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं, महान परमेश्वर हैं। आपने अपने अनुग्रह के अनुसार, अपनी दया के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें हमारे पापों से छुड़ाते हुए अपने बेटे और बेटे के रूप में आपने ग्रहण किया पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम तो पापी हैं, हम अपने पापों को लेकर आपके सामने आपकी उपस्थिति में नहीं आ सकते, बल्कि आपने हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोकर शुद्ध किया और हमें यह मौका दिया कि जो पर्दा हमारे बीच में बहुत सदियों से था, यीशु मसीह के द्वारा वो पर्दा फट गया और अब हम आपसे रूबरू हो सकते हैं, हम आपसे बातचीत को कर सकते हैं पिता यीशु मसीह के द्वारा। और पिता होने दीजिए जब हम आपकी प्रेजेंस के अंदर आए तो पिता हम आपकी प्रेजेंस को, आपकी उपस्थिति को एंजॉय करने वाले हो सके पिता। और हम दुआ चाहते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए, जबकि ये सुबह आपने हमारे जीवन में दी, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ऐसे बहुत से जो लोग हैं आज की सुबह को नहीं देख पाए, मगर पिता हम धन्य हैं, हम मुबारक हैं कि आज की सुबह भी आपने हमें दिखाने में मदद किया। और जब हम आपकी सेंचुरी में, आपकी उपस्थिति के अंदर हैं, तो पिता हम आपसे विनती और निवेदनों को मांगते हैं, हम दुआ करते हैं पिता। हम खासतौर से दुआ चाहते हैं पिता हमारे चर्च के लिए, हम दुआ चाहते हैं हमारे चर्च के कांग्रीगेशन के लिए, एक एक मेंबरान के लिए पिता। उन सबको हम आपके हाथों में देते हैं, उन सब की कमी घटी को आप पूरा करें, सबको सुरक्षित रखें और पिता आपका जलाल उनके ऊपर जाहिर होने वाला हो सके। आप तो खुदावंद खुदा हैं, आप मास्टर हैं, आप स्वामी हैं, आप बनाने वाले परमेश्वर हैं। और पिता होने दीजिए कि आपके बाड़ा पवित्रता का पिता हमारे एक एक मेंबर के चारों तरफ रहे। हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारे हर कमिटीज के लिए, पिता ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उन सबों को, उनके चेयरपर्सन को हम आपके हाथ में देते हैं पिता। वो अपने बुद्धि ज्ञान से नहीं बल्कि आपकी समझ के द्वारा चलने वाले हों। और धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, जबकि ये जीवन आपने पिता उनका इस्तेमाल किया और हमारे चर्च को ये एक सेवकाई के रूप में दिया। पिता उन सबको ब्लेस करें और पिता आपके नाम का पिता झंडा, आपके नाम का परचम पिता इस चर्च के द्वारा लहराया जाए। और पिता हमारी चर्च की नीड्स को हम आपके आगे रखते हैं पिता, पूरी करें। और पिता हम धन्यवाद देते हैं इस कोविड काल के अंदर भी, इस लॉकडाउन काल के अंदर भी आपने हमारे चर्च वर्शिप को संभाल के रखा। आपने इसको बंद नहीं होने दिया, बल्कि ऑनलाइन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से निरंतर पिता हम प्रार्थनाएं करते हुए और इस सर्विस को चलाते हुए आ रहे हैं। पिता आशीषित करें, हम प्रार्थना करते हैं पिता
हमारे जितने भी कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हैं उन सबों के साथ आप रहें, बिशप सर उनके परिवार वालों के साथ आप रहें, और पिता हमारे डीआरसी के जितने भी ऑगस्ट बॉडी हैं पिता उन सबों के साथ आप रहें, उन सबको आप आशीषित करें पिता। धन्यवाद देते हैं एक ऐसी लीडरशिप के लिए, जबकि ये लीडरशिप आपने मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया को, दिल्ली एपिस्कोपल एरिया को बख्शी। पिता आपका हाथ बना रहे, और पिता जितने भी जो हम सब हैं पिता आपके अगुवाई में चलने वाले हो जाए पिता। आपका एक पिता हार्मनी, आपकी शांति हमारे डीआरसी के अंदर हो, और धन्यवाद देते हैं पिता आप निरंतर काम करते हैं अपने दासों के द्वारा पिता, सबको हम आपके हाथ में देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पासवान रेवरेंड डॉक्टर जॉन विश्वास के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि एक जिंदा गवाही आपने उनके जीवन के अंदर दी, और आपके अनुग्रह के अनुसार, आपकी दया के अनुसार आपने एक बार फिर ये मौका दिया कि वो हमारे बीच में आए और प्रार्थनाओं को उन्होंने पिता लीड किया। हम धन्यवाद देते हैं पिता आप उनको सही सलामत लेकर आए, और जो कुछ भी कमी घटी है उसको भी आप पूरा करें। आपका चंगाई उनके ऊपर आने वाला हो जाए, और पिता पूर्ण रीति से चंगाई दे, ताकि जब वो वापस आते हैं तो पिता आपके नाम को धन्य और आपके नाम को मुबारक रहे। और पिता हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को आपके हाथ में देते हैं, उनको भी आप आशीषित करें, उनके एक एक जनों को हम आपके हाथ में देते हैं। पास्टर मन कुमार राय उनके परिवार को भी हम आपके हाथ में देते हैं, उनको भी आप आशीष बरकत दें। और पिता हम प्रार्थना चाहते हैं पिता उनके बेटे अमन के लिए, जबकि पिता हम काफी समय से प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं, पिता उसको पूर्ण चंगाई दे, ताकि उसके जीवन में आपके नाम की महिमा होने वाली हो जाए, एक जिंदा गवाही हो जाए। प्रार्थना करते हैं पिता पास्टर शारोन साहब उनके परिवार के लिए, आपने खिदमती का मौका दिया, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और पिता आपका जलाल बना रहे, आपका हाथ हमारे ऊपर बना रहे, और पिता हर दुख संकट से सबसे बचा के पनाह में रखें, और पिता आपके नाम की इच्छा और महिमा हमारे जीवन के द्वारा और जीवन में पूरी होने वाली हो जाए पिता। प्रार्थना करते हैं पिता आज के वचन के लिए, जिंदा कलाम के लिए, जबकि जो कलाम है आपके दास रेवरेंड डॉक्टर जॉन विश्वास के द्वारा बोया जाएगा पिता, वो 100 गुना फल लाए, वो नहीं बल्कि आपका पवित्र आत्मा उनके द्वारा बात करें, ताकि जो कुछ आज हम सीखते हैं समझते हैं उसको अपने जीवन में लागू करें, अनुसरण करें, और पिता आपके राज्य में हम 100 गुना फल लाने वाले हो सके, और आप हमारे जीवन के द्वारा महिमा पाने वाले हो जाए पिता। एंड लॉर्ड we pray for those who are sick, Lord, we commit their lives into your mighty hand. You are the healer, Lord, and Lord, heal them, Lord, and touch them, Lord, and Lord, also heal them physically as well as spiritually, O Lord. And Lord, so they may know about you, they may know about your mightiness, Lord, and Lord, they may glorify your name on high, and they may have witness that Jesus healed us. And Lord, because you are the healer, and nothing is impossible with you, O Lord. And Lord, everything is possible with you. And Lord, heal them, Lord, mightily. And we pray, Lord, those who are going to celebrate their birthdays, their wedding anniversaries during this week, Lord, be with them. And we are very thankful for them, Lord, for their lives that you provided, Lord, through this church in terms of services, Lord. And Lord, we commit them into your mighty hand, Lord. Bless them abundantly. Open the doors of your heaven, Lord, of blessings. And Lord, may the light be shine upon them. And Lord, also may the glory be shine upon them. Lord, be with them and prepare their ways before them, O Lord, so they may walk, Lord, boldly and courageously. And Lord, they will, Lord, walk according to your will in their lives. And Lord, we pray for each and everything. We pray for our nation. We pray for India. We pray for our state Delhi. We pray for our each and every town, each and every villages, each and every cities, and each and every district we commit into mighty hand, Lord. And Lord, also remove this COVID, Lord, completely from the society and from the nation, from the world, Lord. And so the people of the world may glorify your name, O Lord, and they may have witnessed that you are the glorious God, and you are Master, and you are Creator. And Lord, nothing is impossible, and nothing is greater than you, O Lord. You are the greatest doctor, you are the greatest engineer, you are the greatest and the greatest, mightiest God. And Lord,
be with them. And Lord, we pray for those who are needful, Lord. Be with them, Lord, and provide their needs, Lord. And Lord, use us mightily for your vineyard, mightily for your kingdom, Lord, in order to extend your kingdom and to spread your love, your word to the needy people, Lord. They may know about you, and Lord, they may know your glory in their lives. And Lord, thank you for each and everything. Thank you for your blessing, Jesus, that you continuously provide in our lives. Thank you, Lord, for your guidance, for your such wonderful guidance and such wonderful ways that you prepared before us, O Lord, to walk according to your will. Thank you, Jesus, for each and everything. We ask this pray in Jesus' most precious name, as you taught us to pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And do not let us fall into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power and the glory, forever and ever. Amen. अजीजों, ये वक्त होगा कि हम कुछ गीतों के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करेंगे. Now it's time to glorify God by singing few songs. And praise and worship will be led by Ms. Judy and Mr. Wesley. And let us indulge ourselves and let us glorify God by singing these songs. The Bible says in 1 Peter chapter 1 verse 3, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead." पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और तीसरी आयत पे इस प्रकार लिखा गया है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के होम में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए एक नया जन्म दिया. Jesus is our living hope. We not only worship a God who merely died for our sins, but we worship a God who defeated sin and death and rose again to give us a new life. This is the reason we have hope in a dark world. The reason we can stand in hope in midst of sickness and death, because we know that all things work together for good of those who love the Lord Jesus Christ. यीशु मेरी जीवित आशा है. हम न केवल एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने केवल हमारे पापों के लिए प्राण दिया, बल्कि हम ऐसे ईश्वर की स्तुति करते हैं जिसने पाप और मृत्यु को हराया और हमें एक नया जीवन देने के लिए फिर से जी उठा. यही कारण है कि हम इस अंधेरी दुनिया में आशा रखते हैं, जिस कारण से हम बीमारी और मृत्यु के मध्यम में आशा और उम्मीद के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है. अतः उन्हीं के लिए जो उसी की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं. हे परम पवित्र पिता, तेरी हो स्तुति सदा. तू है महान और शक्तिमान. हे परम पवित्र पिता, तेरी हो स्तुति सदा. तू है महान और शक्तिमान. पर्वत पक्षी सारे करते तेरी महिमा. फिर कैसे चुप रहूं मैं
प्रभु महान। हे परम पवित्र पिता, तेरी हो स्तुति सदा। तू है महान और शक्तिमान। इस जीवन में तेरी इच्छा को प्रथम स्थान। करूं पूरे लगन से सेवा, अब सिर्फ यही अरमान। हे परम पवित्र पिता, तेरी हो स्तुति सदा। तू है महान और शक्तिमान, है महान और शक्तिमान। You are my purpose for living. You are my hope in the night, my reason for singing. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. And I will give thanks forever and ever. Will we ever know what we have been given? He has chosen us and called us his own. Flowing from his throne, there is a river, bringing life and health wherever it goes. You are my life and my light. You are my purpose for living. You are my hope in the night, my reason for singing. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. Oh, oh, oh. And I will give thanks forever and ever. We will bless your name always and ever, and offer up the sacrifices of praise. Teach us, Lord, we pray, to live in your presence. Make us more and more like you every day. You are my life and my light. You are my purpose for living. You are my hope in the night, my reason for singing. You bring your joy to my life, and you're making it better and better. And I will give thanks forever and ever. And I will give thanks forever and ever. And I will give thanks forever and ever. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope.
could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Came the morning that sealed a promise. Your very body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. God, you are my living hope. अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद है इन सुंदर गीतों के लिए, जो कि ये गीत हमारे बीच में गाए गए और परमेश्वर के नाम को यहाँ पर महिमा दी गई। अब ये वक्त होगा स्क्रिप्चर रीडिंग का। It's time for scripture reading, which has been taken from 1 Corinthians chapter 10 verses 1 to 22। आज का जो पाठ लिया गया है वो लिया गया पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 1 से लेकर 22 वचन तक। हिंदी में पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे मिस्टर ऑस्टिन, इंग्लिश में पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी मैडम सुहानी और नेपाली में पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी मिस सिमरन चांटेल। Hindi reading will be read by Mr. Austin, English reading will be read by Madam Suhani, and Nepali reading will be read by Miss Simran Chante. Let us hear the word of God from them. आज की बाइबल रीडिंग है पहला कुरिन्थियों चैप्टर 10 वर्स 1 to 7। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया
और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें और ना मूर्ति पूजक बने, जैसे कि उसमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आज हामी बाइबल पाठ गर्न गइरहेको छौँ। पहिलो कोरिन्थी 10:8-13सम्म। हामी व्यभिचार नगरौँ, जसरी तिमीहरूमध्ये कुनै कुनैले व्यभिचार गरेथे र एकै दिनमा 23,000 मरेथे। हामी प्रभुको परीक्षा नगरौँ, जसरी तिमीहरूमध्ये कुनै कुनैले गरेथे र सत्प्रहरूबाट नष्ट भएथे। तिमीहरू गनगन नगर, जसरी तिमीहरूमध्ये कुनै कुनैले गनगन गरेथे र नष्ट पार्नेबाट नष्ट भएथे। यी कुराहरू तिमीहरूलाई उदाहरणको रूपमा भएथे र हाम्रो चेतावनीको निम्ति लेखिएका हुन्, जसमाथि पुस्ताहरूको अन्त हुन लागेको छ। यसकारण म खडा छु भने जसले विचार गर्दैछ त्यो होशियार रहोस्, नत्र त त्यो लड्छ। मानिसले सहन सक्ने किसिमको बाहेक अरू परीक्षामा तिमीहरूको परेका छैनौ र परमेश्वरको विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसले तिमीहरूलाई तिमीहरूका शक्तिदेखि बाहिरको परीक्षामा पर्न दिनु हुने छैन र तिमीहरूले सहन सकोस् भनेर परीक्षाको साथै उमक्ने बाटो पर्नी दिनुहुन्छ। आमेन। Today's English reading has been taken from 1 Corinthians chapter 10 verse 14 to 22. My friends, you must keep away from idols. I'm speaking to you as people who have enough sense to know what I'm talking about. When we drink from the cup that we ask God to bless, isn't that sharing in the blood of Christ? When we eat the bread that we break, isn't that sharing in the body of Christ? By sharing in the same loaf of bread, we become one body, even though there are many of us. Aren't the people of Israel sharing in the worship when they gather around the altar and eat sacrifices offered there? Am I saying that either the idols or the food sacrificed to them is anything at all? No, I'm not. That food is really sacrificed to demons and not God. I don't want you to have anything to do with demons. You can not drink from the cup of demons and still drink from the Lord's cup. You cannot eat at the table of demons and still eat at the Lord's table. We would make the Lord jealous if we did that, and we are not stronger than God. May God bless this reading and understanding of His word. Now prepare our hearts, mind and soul to hear the word of God. आइए हम अपने दिलों को तैयार करें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अजीजों। और आज का जो वचन है वो रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास के द्वारा हमारे साथ बांटा जाएगा। और मैं निवेदन करता हूं रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास से कि वो आए और परमेश्वर के वचन को हमारे साथ बांटे। May I request Reverend Dr. John R. Vishwas, please come and share the word of God with all of us. प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो उसने दिया। और मैं आपके सामने लगभग 4 रविवार के बाद यानी सितंबर 20, 27 और अक्टूबर 4 और 11 के बाद आपके सामने आ सका हूँ। ये प्रभु की बड़ी कृपा है। दिस इज द ग्रेट मिरेकल ऑफ हिज ग्रेस that after 4 Sundays today I could meet you and we can talk about the word of God. And I know that God has been so great to us, faithfully guiding us, leading us and bringing us into this point where we could study his word and meditate upon his holy scripture. परमेश्वर महान है, दयालु है, विश्वास योग्य है और अपनी बड़ी दया के अनुसार
हमेशा विश्वास योग्यता के साथ हमारे साथ बने रहते हैं। Dear friends, I was admitted in St. Stephen Hospital on 15th of September night at about evening 5:30 or 6 o'clock, and then after examining me, though I was having sugar problem, they took me to the isolation room, and they kept me there almost 3.5 days. On the second day, they took my coronavirus test, and by the grace of God, it came negative, and they transferred me to post-operative ward, where I was there for almost 4 days. And then on the 8th day, I was transferred to private ward 3060, where I stayed almost about 12 days or 13 days, and then finally I was discharged on very soon, that was 6th October. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि इस लंबी बीमारी के बाद मैंने बताया किस प्रकार से मुझे 15 सितंबर को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, क्योंकि मुझे काफ़ी तेज़ बुखार था और शुगर के बढ़ने से तकलीफ़ थी। गले में एक गांठ सी हो रही थी, अंदर जो पैरोटिक ग्लैंड है उसमें कुछ स्वेलिंग थी। उसकी चिकित्सा तो उन्होंने 8 दिन बाद शुरू करा। फिनिशिंग टेस्ट के बाद जो एब्सेस निकला और उसके दवा आज भी दे रहे हैं, और उन्होंने कहा कि महीने भर में ये डिसॉल्व हो जाएगा, यानी पूर्वतः स्थिति में आ जाएगा। तो मुझे वहाँ रखा गया, जो आइसोलेशन वार्ड था। एक बहुत ही अजीब सा अनुभव। खैर वहाँ रहना पड़ा मुझे। उसके बाद कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट आया जो नेगेटिव था। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में मुझे रखा गया करीब 3.5 या 4 दिन तक, 3.5 या 4 दिन तक। उसके बाद मुझे ट्रांसफ़र किया गया और मैं करीब 12 दिन तक प्राइवेट वार्ड में रहा, और अभी 6 अगस्त को वहाँ से छुट्टी दी है। और अभी 2 बार मैं हॉस्पिटल गया चेकअप के लिए। प्रभु की दया से शुगर अब ठीक चल रहा है, कभी फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन आप सबों की प्रार्थनाओं से। और जो ग्लैंड में स्वेलिंग आ गई थी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, और एफएनसी टेस्ट का जो रिपोर्ट आया, उन्होंने कहा कि और कोई सी बात नहीं, डरने की बात नहीं, उसमें कुछ एब्सेस है। और वो अब कल ही ENT के डॉक्टर ने कहा कि काफ़ी हद तक वो सूख चुका है, थोड़े समय के बाद सूख जाएगा, यानी महीने भर के बाद बुलाया है, और ये भी कंट्रोल में है, और ये इसमें कोई तकलीफ नहीं है। कुछ इन्फेक्शन है, वो उसकी दवाई दी जा रही है। मैं इन सब बातों के लिए प्रभु परमेश्वर का, हालांकि वहाँ जब मैं रहा तो काफ़ी तकलीफ रही, काफ़ी पेन रहा, कनूला के दोनों हाथ में लगने से एक के बाद एक, और जो एंटीबायोटिक दी गई काफ़ी हेवी थी, और ये काफ़ी चढ़ाए गए बॉटल, और दोनों हाथों में बारी बारी से कनूला लगा, और बहुत से टेस्ट भी हुए हॉस्पिटल में सैंपल के ब्लड के। लेकिन प्रभु की बड़ी दया रही, कृपा रही, और आप सबों की प्रार्थनाएं, और इन सब के लिए मैं प्रभु के नाम का धन्यवाद करता हूँ। ये बड़ी गवाही का कारण है। प्रभु अपने लोगों को नहीं छोड़ता। 21 दिनों में जब मैं हॉस्पिटल में था और हमारे परिजन आते थे, आप में से बहुतों ने मुझे फ़ोन करा, मेरे मित्रों के फ़ोन आए साउथ इंडिया से, सिंगापुर से, बाकी जगह से। अब बहुतों ने मेरे लिए प्रार्थनाएं करें, अभी भी कर रहे हैं। और आप लोग जो कलीसिया के मेरे प्रियजन हैं, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे माँ बाप हों, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हों, आप लोग मेरे साथ मेरे दर्द में, मेरी तकलीफ में, मेरे कष्ट में खड़े रहे। मैं प्रभु का आप सबों के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आई स्टैंड with you, all of you,
or you stood with me in my pain, in my suffering, in my isolation, where there was screaming in the isolation ward here and there, coughing and crying, but I could even face and feel the presence of God in that midst also, in that time also. Because I always remembered a word from the scripture, Psalm 46:10, which I always quote for my own life. Be still and know that I am God. शांत हो जाओ, जानो कि मैं परमेश्वर हूँ. मैं जातियों में महान हूँ. Be still and know that I am God. And my friend, during these days of my hospitalization, I could also experience the power of God in my life. How it was given to me. And in my prayer, many times I shed my tears. I cried to the Lord. I said, Lord, here am I. And then just before the discharge, I think 4 or 5 days ago, I said, Lord, I want to surrender my entire being on your altar. मैंने कहा डिस्चार्ज होने से 3-4-5 दिन पहले कि प्रभु, मैंने बहुत प्रार्थना करी, मेरे मित्रों ने प्रार्थना करी, परिवार के लोगों ने प्रार्थना करी, कलीसिया के लोग प्रार्थना करी, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद प्रभु, मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को, अपने पूरे देह को, अपनी पूरी आत्मा को, अपने पूरे आप को आपकी वेदी में अर्पण करता हूँ. प्रभु, आपकी इच्छा पूरी करें. और आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये उसकी इच्छा है, ये उसकी कृपा है. एंड विद द ग्रेटफुल हार्ट आई से, ओ माई सोल, ब्लेस द लॉर्ड एंड नॉट फॉरगेट ऑल हिज बेनिफिट्स. हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे और उसकी किसी उपकार को ना भूलना. कुछ लोगों ने फाइनेंशियली हमारी मदद करी और कुछ ने कहा है कि वो करेंगे, क्योंकि जो हॉस्पिटल का जो भी था वो काफ़ी बड़ा था अमाउंट जिसको चुकाया गया. मेरी पत्नी ने अपने अकाउंट से उसको चुकाया. प्रभु की कृपा, हम उस सब के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं. और मैं जानता हूँ कि आगे भी प्रभु का अनुग्रह हम पर बना रहेगा, न केवल मुझ पर. जब मैं हॉस्पिटल में था तो कईयों के फ़ोन आए, कईयों के लिए हमने प्रार्थना भी करी और कईयों के न्यूज़ भी आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है इस बीमारी के वजह से, जिससे प्रभु ने पहले मुझे निकाल दिया था. लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ, आई नो वन थिंग, दैट आवर गॉड इज सो फेथफुल एंड सो काइंड एंड हिज ग्रेस इज मोर देन वॉट एवर वी कैन थिंक. As he said to St. Paul, I could hear that voice in my heart inside, John, my grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है. ये मैंने सुना अंदर शांति में. I had that experience of dedicating myself on his altar. And therefore, my friends, this morning when I speak to you with heart of gratefulness and gratitude, and we are so grateful to all of you, members of our Nepali congregation, members of our Hindi congregation, members of our English congregation, one and all, each one. May God bless you abundantly, and let this bond of love that you have exhibited in my absence, all the work of this congregation has gone smoothly, has been taken care of by smoothly. I also want to thank the Lord for Pastor Sharon and Pastor Mankumar and all our lay preachers and all our pastor committee members for so cooperative in their prayers, in their concern, and in their intercession for my life. Dear friend, another thing that I was reminded again and again in hospital, that we all know this life is precious. ये जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है. अगर ये जीवन है तो सारी बातें हैं, और अगर जीवन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. And that life begins with God, our Savior and Lord Jesus Christ, who gave His holy blood for my
my sins. He died on the cross of Calvary. And today that I live is because of the testimony that Jesus lives for me. And I have my hope. मेरे लिए ये वचन दिया गया प्रभु ने, पौलुस के वचन, मेरे लिए जीना मसीह है, अब मरना लाभ है। इन सब बातों के लिए आज मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज का जो पाठ हमारे लिए पढ़ा गया, जिस पर आज हम गौर करना चाहते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसके पहले पद से। और आज मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन आधे घंटा या 35 मिनट का समय लूँगा मैं। हम लोग इस पैसेज में से जो हमारे लिए पढ़ा गया, प्रभु ने चाहा तो हम करीब 6 या 7 बातों को देखेंगे संक्षेप में, क्योंकि बहुत ही बड़ा विषय है ये। और कुछ पुराने नियम के हवालों को भी पढ़ेंगे जहाँ इसका संदर्भ दिया गया। पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। Dear friends, today our portion of our meditation is very important one. 1 Corinthians chapter 10 verses 1 onwards. For I want you to know, brothers, that our fathers were all under the cloud, and all passed through the sea, and all were baptized into Moses in the cloud and in the sea, and all ate the same spiritual food, and all drank the same spiritual drink. For they drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. Nevertheless, with most of them God was not pleased, for they were overthrown in the wilderness. Now, in a Christian life, this is a picture for the example for all of our lives. ये जो कुछ यहाँ हमने पढ़ा और अब आज हम विचार करेंगे संक्षेप में, ये जो चित्र है इसराइलियों के आत्मिक और सांसारिक यात्रा का, जहाँ मिस्र से निकले थे और कनान की तरफ जा रहे थे, उनके जीवन के तमाम जो घटनाएं हैं, तमाम जो उदाहरण है, वो हमारे लिए, आपके लिए एक चिन्ह है, एक नमूना है, जिस पर हमें गौर करने की आवश्यकता है। पहली बात है हमारा देखते हैं, फर्स्ट द थिंग दैट वी सी हियर, फॉर आई वांट यू टू नो ब्रदर्स, वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्फ, हमें इस बात को जानना है कि उनके साथ क्या हुआ। बाज हम इन बातों पर केवल गौर करते हैं और इन पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पौलुस कहता है कि हमें ध्यान देना है। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो, और हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। अब इस कहानी को आप जानते हैं। यू ऑल नो द स्टोरी हाउ दे केम आउट ऑफ इजिप्ट आफ्टर फेसिंग दोस प्लेग। In fact, they did not face the plagues. It was for the Egyptians. परमेश्वर ने जो वहाँ का राजा था फिरौन और उसके लोगों के सामने 10 विपत्तियां लाई, एक के बाद एक विपत्ति। और अगर आप विपत्तियों का अध्ययन करें, when you study this plague, you will understand that each plague was brought upon the people of Egypt as the punishment of God to their different God. परमेश्वर उनके देवताओं को सजा दे रहा था, और इन सब के पीछे उन देवताओं का नाम आप देखेंगे। अगर आप कभी प्रभु ने मौका दिया तो इस पर हम अध्ययन करेंगे। लेकिन यह जो मुख्य बात है कि जब ये प्लेग समाप्त हो गए, आज जो 10वां प्लेग था, उसके वजह से वहां के सारे पैरोटे मर गए। लांघन पर्व के दिन, ऑन द डे ऑफ द फेस्टिवल ऑफ अटोनमेंट, and it was a terrible night, and then God saved his
people who were altogether almost 30 lakhs of people. उनमें से 6 लाख तो प्यादे थे और बाकी परिवार के लोग थे। बहुत बड़ी भीड़ थी, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। उस जमाने में आज से लगभग 3000 या 3500 साल पहले परमेश्वर का उनको वहां से निकाल लाना मूसा के अगुवाई में, और उनको उनके साथ लाल समुद्र से उनको निकालना मिरेकल से कम नहीं था। It was a sheer miracle that how these people of almost 3 million in numbers were brought out from the slavery of Egypt and were brought into this place where the Red Sea was there. And by the grace of God, that became a road in between the sea, and they could cross over that sea as God was taking care of them. बाइबल में लिखा है कि जैसे उकाब के समान मैंने तुमको वहां से उठा करके यहाँ लाया। And now they were in that jungle, और जहां उनके बारे में बहुत सी बातों को वर्णन है। तो यहाँ कहता है, पौलुस कहते हैं, लेखक कहते हैं, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब बातों के बारे में अनजान रहो। किस बात के बारे में अनजान ना रहो? कि उनके साथ क्या घटनाएं घटी। मित्रों, बहुत से बार हमारे जो प्रभु के लोग हैं, जो हमसे पहले दुनिया से चले गए, रहलत कर गए, उनके जीवन की जो घटनाएं हैं, उनके जीवन की जो सच्चाइयां हैं, वो हमारे लिए एक अनुकरणीय बात हो जाती है। इसलिए हमें उन्हें भूलना नहीं। वी शुड नॉट फॉरगेट दोस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। वी टॉक अबाउट मिशनरीज, वी टॉक अबाउट people in the Bible, especially 11th chapter of Hebrews, about 33 to 34 men and women who became victorious by exercising their faith. They trusted God, and that faith of their trust became their strength in their life, and they overcame. They could overcome some of the greatest trials in their lives. They could see things that are not visible by general people by the sight of their faith. And the same thing St. Paul says that we need to also have, that we need to see his grace and miracle in our life, so that we may go with him, walk with him day by day. For I want you to know, brothers, that our fathers were all under the cloud and all passed through the sea. So this we understand, we know. And if you read the book of Exodus, these things are clear for us. The second point, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया. And all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. Now why Moses? Because Moses is the picture of Jesus Christ. यह जो मूसा है वो यीशु मसीह का चित्रण है, यीशु मसीह को प्रकट करता है। मूसा और यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम का मतलब है अभिषिक्त उद्धारकर्ता, अभिषिक्त उद्धारकर्ता। और इसलिए मूसा के जीवन को हमें देखने की आवश्यकता है कि मूसा के अगुवाई में वो समुद्र से पार हो गए। उस समुद्र के पास दो बात हुई कि परमेश्वर का जो खंबा था बादल का, उनके पीछे चला गया और परमेश्वर उनके साथ था। और जब लिखा है कि बाद में जब फिरौन की सेना पीछे आई, उन्होंने सोचा कि हम भी पार हो जाएंगे और उनको वहां जाके मारेंगे, उस छोर जाके मारेंगे, क्योंकि इस छोर में तो हमें मिले नहीं। लेकिन वह लिखा है, आप पढ़िएगा अच्छे से निर्गमन की पुस्तक में, कि परमेश्वर की आंखों ने देखा मिस्रियों की सेना को, और उसने परमेश्वर ने उनके रथों के पहिए निकाल दिए, और वो सब के सब, अब पता नहीं कितने लोग थे, करीब करीब 50,000 से 1 लाख की सेना होगी, क्योंकि मिस्र की पूरी सेना थी, उनके रथ थे, उनका फिरौन उनके साथ था। और लिखा है कि वो सब के सब जल में ढेर हो गए। परमेश्वर उनके साथ था बादल के रूप में और ज्योति के खंबे के रूप में, मानो उससे वो निकले और मूसा के नाम से उन्होंने बपतिस्मा लिया, एक उस जीवन की तरफ गए जहां से अब उनको कनान देश जाना था। इसलिए
इसका वर्णन या पौलुस लेखक कहते हैं कि सब ने बादल में, समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में कुछ पदों को हम पढ़ें बाइबल में जहां इसका वर्णन किया गया है। मैं चाहूंगा अपने साथ निकाल लें, मेहरबानी से आप निकालें मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक, उसका 17 अध्याय। लेट अस टर्न टू द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 17 और मैं कुछ पदों का आपके सामने पढ़ूंगा पहले पद से। 17 अध्याय निर्गमन 17 पद पहले पद से। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रफीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। इसलिए वे मूसा से विवाद करके कहने लगे, या वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पानी पीने को पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पत्थरवाह करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तू नील नदी पर मारा था उस अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब नाम पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते हैं वैसा ही किया। अब मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कर की, क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। अगर यहाँ पर देखें आप तो यहाँ स्पष्ट लिखा है, इस पद को अगर पढ़ें तो यहाँ लिखा है, जो आपके सामने पद पढ़े गए, कि परमेश्वर के लोग जब वहां से निकले और वहां से निकल कर आ रहे थे तो उनके साथ क्या हो। ये तीसरी बात को देखें यहाँ पर, जो तीसरी बात हम देखेंगे, और सबने एक ही चट्टान आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ और वे इसलिए जंगल में ढेर हो गए। अब यहाँ पर अब इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से जब परमेश्वर के अगुवाई में ये लोग मिस्र से निकले और उस जगह पहुंचे जहां उनको पानी नहीं मिला, तो यह लिखा है कि वो मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाने लगे, चिल्लाने लगे कि तू हमें अपने बच्चों के साथ और ढोरों के साथ यहाँ मारने ले आया। तब मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने लिखा है कि हमने पढ़ा यहाँ पर कि परमेश्वर ने कहा मूसा से कि जो ये होरेब का पहाड़ है उसके चट्टान पर तू उसके सामने खड़ा हो जा और उस चट्टान पर मार, तब उसमें से पानी निकलेगा और ये लोग उसमें पिएंगे। और उस जगह का नाम रखा गया, लिखा मूसा ने उस जगह के स्थान का नाम रखा मस्सा और मरीबा, क्योंकि वहां पर लोगों ने मूसा के खिलाफ और ईश्वर के खिलाफ वाद विवाद किया था और उसकी परीक्षा की थी। तो तीसरी मुख्य बात यहाँ पर हम देखते हैं, द थर्ड थिंग वी सी हियर, वर्स 4, and all drunk this same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. Nevertheless, with most of them God was not pleased, for they were overthrown in the wilderness. तो तीसरी मुख्य बात है, दूसरी बात हमने देखी कि उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया, लेकिन तीसरी जो बात यहाँ पर हम देखते हैं कि बपतिस्मा के थोड़े समय के बाद वो मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाने लगा। पहले ही बुड़बुड़ा रहे थे। पहले क्या कहा था, फिरौन की सेना को देख करके, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी कि तू हमें यहाँ ले आया मरने के लिए, और अब पानी ना मिलने के कारण कहते हैं कि तू हमें प्यासा मारने लिए आया है। और ये जो उनकी बात है, उनका जो स्वभाव है, ये बार बार उनके जीवन में पाते हैं।
और उसका आत्मिक अर्थ क्या मित्रों? आत्मिक अर्थ यह है कि मसीह जीवन में आगे बढ़ते हुए जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, जब जीवन में परेशानियाँ आती हैं, तो क्या हम बुड़बुड़ाते हैं या हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं? ये मानविक स्वभाव है। हम स्वर्गदूत नहीं है। We are not the angels. This is human tendency that we start grumbling. But the grumbling that ours makes us confused. असली जब हम प्रभु की तरफ देखते हैं और बुड़बुड़ाते नहीं हैं तो प्रभु उत्तर देता है। और यहाँ पर परमेश्वर ने उनके लिए जल का प्रबंध करा। He provided the water for them. And he said, go with some of the people or elders of Israelite and struck that rock near Mount Horeb, and the water will gush out, water will come out and drink all of it. And Bible says very clearly that rock was Jesus. यहाँ लिखा है कि वो चट्टान मसीह था। यीशु ने कहा, मैं जीवन का जल हूं। उसने किससे कहा था? सामरी स्त्री से कहा था कि जो मुझसे जल मांगे और उस जल को पिए वो फिर प्यासा नहीं होगा या प्यासी नहीं होगी। And this is the spiritual lesson we learn here, my friend, that in our walk with the Lord, in our journey with the Lord, we might face awkward situation. Resources may not be there physically, and things like that will happen in our life. But if we trust in God, depend in God, God will provide for us out of nothing. चट्टान से पानी निकलना उनके लिए मिरेकल था, लेकिन हुआ क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा था। चट्टान में पानी था नहीं था वो तो हम नहीं जानते, लेकिन जो प्रतिज्ञा देने वाला था वो विश्वासियों के। One of the greatest lessons that I learned here, whether the water was there or not on the rock is not the question, but the one who said Moses, go and struck the rock, he is the living water. वो जीवन का जल है। और जब मूसा ने आज्ञा मानी तो पानी निकला। By obedience we see miracle. When we obey him, we see miracle in our life. And no matter what situation you go through, my friend, today, आप अपने जीवन में किसी भी परेशानी में आज क्यों ना है, ये हो सकता है। You may be going through very hard time, as I went through in the hospital. Our family went through. It was suffering, time of isolation, and many times some of the thought came in my mind, negative thought. And the thought was there, ki, Lord, will I survive this pain? When it will end? It was there because I'm a human being. And then the second thought came with force that he will survive because God is there. In him, through him, know his will. And he brought me here, back today. And I'm sitting with you to talk to you. When you trust God, he is there to open door for us. यहाँ पर हम चौथी बात को देखते हैं। The fourth thing that we learn here, verse 6. ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही हम भी बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तो मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितनों बन गए। जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और हम ना व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक ही दिन में 23,000 मर गए। ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। ना हम बुड़बुड़ाएं कुड़कुड़ाएं जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। तो ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वह हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। Now the fourth thing is very important here, और इसको हमें समझने और जानने की आवश्यकता। मैं थोड़ा पढ़ना चाहूँगा इसके बारे में। अब मैं चाहूँगा अपने साथ निकाल लें मेहरबानी से निर्गमन की पुस्तक उसका
32 अध्याय जहां पर उनके द्वारा परमेश्वर से फिर जाने की बात है और उनके सामने तकलीफ को आने की बात है। निर्गमन उसका 32 अध्याय मैं पढ़ूंगा, उसके 15 पद से लिखा है, Then Moses turned and went down from the mountain with 2 tablets of the testimony in his hand, tablets that were written on both sides, on the front and on the back they were written. तब मूसा मुड़कर साक्षी के दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों के इधर उधर दोनों ओर लिखा हुआ था और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो खोदे कर लिखा हुआ था वो परमेश्वर के द्वारा लिखा हुआ था। तब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा। तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का शब्द सुनाई पड़ता है। उसने कहा, ये जो शब्द है वो ना तो जीतने वालों का है और न हारने वालों का है, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। छावनी के पास आते मूसा को एक बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़का और उसने तख्तियों को अपने हाथ से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़ों को लेकर आग में डाल के फूंक दिया और पीस कर चूर चूर कर डाला और जल में ऊपर फेंक दिया और इसराइलियों को उसे पिलवा दिया। और अगर आप आगे पढ़ें तो यहाँ सजा का वर्णन है, सजा का वर्णन है कि परमेश्वर ने उनको दिया। इस प्रकार से हम प्रभु के वचन में इन बातों को देखते हैं और पढ़ते हैं कि प्रभु ने किस प्रकार से इन लोगों को जिस काम के करने से परमेश्वर के पीछे हटने से लौट गए थे, प्रभु ने उन पर विपत्ति डाली क्योंकि उन्होंने बछड़ा बनाया था। अगर आप पढ़े इसी अध्याय के 30 पद से लिखा है, दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बछड़ा बनाकर बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने तो सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया, तो अभी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक से मेरे नाम को काट डाल। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं उसकी अपनी पुस्तक से काट डालूंगा। तब अब तू जाकर अपने लोगों को उन स्थान में से ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की है। देख, मेरा दूत तेरे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। अतः यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्होंने बनवाया था। और परमेश्वर के इन कामों को यहाँ पर हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए महत्वपूर्ण है मित्रों। इन बातों को हमें जानने समझने की आवश्यकता है और जब हम इन बातों को पढ़ते हैं, इन पर गौर करते हैं, तो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन के द्वारा पाते हैं, देखते हैं। यह लिखा है, जो चौथी बात हमने देखी, 6वें पद में लिखा है, इब्रान इसके पहले कुरिन्ती के 10 अध्याय के 6वें पद में, ये बातें तुम्हारे दृष्टांत है, जैसा उन्होंने लालच किया वैसे बुरी वस्तुओं का लालच ना करे, और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे उनमें से कितनों ने बन गए, और जैसे लिखा है कि लोग खाने पीने और खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें, उनमें से कितनों ने किया और एक ही दिन में 23,000 मर गए। और इसके आगे अगर आप देखेंगे वचन में इस बात का वर्णन है कि परमेश्वर उनको सजा दी और वो वहीं ढेर हो गए। ये सारी बातें परमेश्वर के लेखे में हमारे लिए एक प्रकार से नमूना है और हमें जानने समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमें अपने साथ ले जाना चाहता है, हमें आगे बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपने जीवन में मजबूत, अपने विश्वास में मजबूत किए जाए ताकि हमारे जीवन से उसकी महिमा और उसकी स्तुति हो सके। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं 5वीं बात को, और वो लिखा है 12वां पद, 1 कुरिन्ती 10 अध्याय 12 पद लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है
और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। इस कारण हे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूं, जो मैं कहता हूं उसे परखो। Now the fifth thing here we read in verse 12 onwards, therefore let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. हम अपने मसीह जीवन में कई बार ये सोचते हैं कि हम तो मजबूत हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पौलुस कहता है कि हमें सावधान होने की आवश्यकता, we need to be very very careful because we are in a warfare experience. हम एक आध्यात्मिक युद्ध के, मलयुद्ध के अनुभव में। और इफिसियों के 6वें अध्याय के 10 से 18 पद में लिखा है, we read in the book of Ephesians chapter 6 verses from 10 to 18 that we are in a warfare experience. हम एक ऐसे अनुभव में हैं जहां निरंतर हमारे जीवन को परखा जाता है, हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, और अगर हम स्थिर नहीं हैं तो हम गिर सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन यह लिखा है, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है कि परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है, अपने लोगों को संभालता है। लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। हमारे जीवन की एक सीमा है, और अगर हम उस सीमा को हमने पहचान लिया है तो परमेश्वर के सामर्थ को हम ज्यादा जान पाएंगे। परेशानी तब आती, द प्रॉब्लम कम्स व्हेन वी डोंट रियलाइज द लिमिटनेस ऑफ आवर पावर, ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ आल्सो। वी आर लिमिटेड इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, बट व्हेन वी ट्रस्ट गॉड, हिज जॉय बिकम आवर स्ट्रेंथ, एंड बाय ट्रस्टिंग इन हिज जॉय, बाय ग्लोरीफाइंग इन the name of the Lord, we grow in him day by day and our strength increases day by day. जब हम उस पर आधारित रहते हैं, निर्भर रहते हैं, तो परमेश्वर हमारी मदद करता है। उसका आनंद जो है हमारे लिए सामर्थ और शक्ति बन जाती है। हम उसमें आगे बढ़ते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसमें निरंतर बढ़ते जाते हैं। इसलिए हमें अपने मसीह जीवन को बहुत ही अच्छे से परखने की आवश्यकता है। या पौलुस इस पत्र में यही तो कहता है, शुरू में उसने यही कहा ना, क्या कहा उसने, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम अनजान रहो। अनजान रहते हुए हम अपने जीवन में हम बहुत से बार गिर जाते हैं, इसलिए कि हम नहीं जानते, लेकिन अनजान है। उसकी व्यवस्था हमारे लिए है। मसीह जीवन के जो हमारा संविधान है प्रभु का दिया हुआ, मत्ती 5, 6, 7 अध्याय हमारे पास है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिश्चियन लाइफ इज विथ अस in the form of Matthew 5, 6 and 7. But when you don't read those things and don't realize the meaning of those things, we fall into temptation. लेकिन यहाँ लिखा है, the God is so faithful, God is faithful, and He will not let you be tempted, and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape, that you may be able to endure it. और पतरस इस बात का वर्णन करता है कि हमें प्रभु परमेश्वर संभालता है, उसके हाथ हमें संभालते हैं कठिनाई में, तकलीफ में और परेशानी में। मित्रों, मैं आपको सच बता रहा हूं, इन दिनों में जब 6 महीने हो रहे हैं, ये पेंडेमिक चल रहा है, शुरू में मैंने इन बातों को हल्के में लिया। इसलिए मैं घरों में भी जाता, विजिट भी करता था, दुआ भी करने जाता था, वहां चले गए, यहाँ चले गए, और फिर मैं जकड़ में आ गया। हालांकि मेरे अंदर वैसा कोई सिम्टम नहीं था कि कोरोना हो गया, लेकिन शुगर के रूप में। और उसके बढ़ने से बाद में मुझे पता लगा, हॉस्पिटल में किसने कहा, मेडिकल पर्सन ने कहा कि सर ये जो आपकी तकलीफ है ये टेंशन से हुआ है। फिर मैं सोचने लगा, तो मैंने कहा आप टेंशन मत लीजिए, दुनिया चलती रहेगी, काम होता रहेगा, आपको अपने शरीर पर ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। तो प्रभु ने सिखाया कि अपनी टेंशन मुझे दे दो, अपनी चिंता मेरे हाथ में रख दो। बाइबल में ये लिखा है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डालो। और यीशु मसीह कहते हैं
किसी बात की चिंता ना करो, तुम पहले उसका राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सारी वस्तु तुम्हें दी जाएंगी। मैंने वहां सीखा और आज भी सीख रहा, और आप भी जानते इस बात को। इसलिए हमें इस बात पर गौर करने और ध्यान देने की आवश्यकता है। छठी बात यहाँ पर हम देखते हैं, लिखा है 16 पद में, वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं कि मसीह के लहू की सहभागिता नहीं, वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, हम भी जो बहुत है एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में से सहभागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इस्राएली है उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं ये क्या कहता हूँ कि मूर्ति पर चढ़ाया हुआ बलिदान कुछ है और मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान चढ़ाते हैं करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। अब मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी बनो। अब यहाँ पर एक अलग विषय है, लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर हमें गौर करने की आवश्यकता कि प्रभु का जो उसकी जो मेज है वो क्या है। अगर आप इसी अध्याय को देखें, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय को देखें और 23 पद से पौलुस इस बात को हमें समझाता है। मैं चाहूंगा कि हम इस बात पर गौर करें प्रभु के देह के बारे में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड सो दैट वी आर केप्ट अवे फ्रॉम टेम्पटेशन, वी बिकम विक्टोरियस व्हेन टेम्पटेशंस कम्स। क्या लिखा है पर 23 पद लिखा है पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, क्योंकि बात मुझे प्रभु से पहुंची, अब मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। और इस रीति से उसने ब्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी को खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते। इसलिए therefore eat the bread or drink the cup of the Lord in unworthy manner will be guilty concerning the body and the blood of the Lord. Let a person examine himself and then so eat of the bread and drink of the cup. अब इसका मतलब यहाँ पर हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब हम प्रभु की इस वेदी में आते हैं और उसके बदन में भाग लेते हैं, उसके लहू में भाग लेते हैं, तो हम प्रभु की सामर्थ को महसूस करें और उसके लिए हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता। आज ये वक्त है मित्रों कि हमें इस सालों की इस यात्रा के इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर अपने मसीह जीवन में बहुत ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा हमें सावधान होने की आवश्यकता है। मैं आपको सच बता रहा हूं कि जब मैं बिस्तर पर पड़ा था हॉस्पिटल में, कई बार वहां कोई नहीं होते थे, अब मैं रात को रोता था। कई बार लोग देखते थे, लेकिन मैं कई बार मन में रोता था। मैं कहता, प्रभु मैं अब जो जीवन आप दे रहे हैं मुझे, प्रभु बहुत ही बारीकी से जीवन व्यतीत करूंगा, सावधानी के साथ प्रभु, अपने आप को जांचते हुए और आपके डर और भय में होकर के। ये नहीं कि मैं ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा अब और सावधानी के साथ, अपने आप को परहेजगारी के साथ, आत्मिक परहेजगारी, सांसारिक परहेजगारी, एब्स्टिनेंस in the physical things, abstinence in the spiritual things also, so that my life become an offering acceptable on his altar. और जब मैंने ये प्रार्थना करी तो एक अजीब सी शांति मेरे जीवन में आई। मैंने उस शांति को महसूस करा, मैंने इस बात को महसूस करा कि प्रभु मेरा अभिषेक कर रहा है। क्योंकि बहुत सी प्रार्थनाएं लोगों ने करी, कई बार टेलीफोन से मैं प्रार्थना सुनता था, कई लोग मेरे प्रार्थना करते थे, घर के लोग। Dear friends, I could understand, and at the time of my isolation, I could feel that God is touching me in a very unique way, in a very precise way. And I said, as I said earlier also, I said, Lord, I offer myself on your altar. Make me victorious, Lord. प्रभु मुझे चलाएं. And then I could feel His anointment on my life. And I am to tell you, friend, very sincerely,
that God started healing me. His healing came on my life. And yesterday, when I was in hospital for the second checkup, the doctor said to me, the ENT department, the head, the senior doctor, कि Pastor, don't worry about this. It will dry up by itself. Because you have been given some medication which is highly antibiotic. The pus is inside little bit remaining now. Don't press it by mistake, otherwise it can burst. But leave it as it is and come after 1 month, things will be all right. And I said, Lord, praise the Lord. Jesus praised you. There's some other defects in my body. They said it will be taken care of. And just maintain your diet and sugar will be taken care of. What I mean to say here, my friend, मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि परमेश्वर हमें संभालता है, हमें उसकी तरफ देखने की आवश्यकता है. और यहाँ पर यही बात जो लिखा हुआ है उसके बदन के बारे में, उसके लहू के बारे में, कि वो हमारे लिए चंगाई का कारण है, हमारे लिए वो आशीष का कारण है. हमें इसको पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि एक ही सत्य है और वह है प्रभु यीशु मसीह. उसके बगैर कोई और सत्य नहीं है दुनिया में. दुनिया में बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं जो घटती रहती हैं, घटती रहेंगी, लेकिन अगर हमने अपना ध्यान यीशु मसीह पर लगा लिया, उसके बदन पर ध्यान दिया, उसके लहू पर ध्यान दिया, तो चंगाई हमारी है. When we concentrate upon the mighty power of his body that was broken on the cross and the blood that was shed on the cross for me and you, we will receive the power out of which for our healing, for our daily sustenance, and for our daily growth in the Lord Jesus Christ. And that is the message that I received. And the seventh thing that I read, and we conclude with that 7:1. तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते. प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते. क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. Cup of the Lord. The cup of the Lord is the faithful cup in which he pours his blood that was shed on the cross of Calvary from Christ's body. That is holy blood. And so when we worship him, let us be faithful to him. And let us not turn to the demonic powers and start trusting in their power also. Because demonic powers there is no power actually. Temporal power makes us horrible, makes our life horrible. इसलिए हमें अपने जीवन में सावधान रहना है कि हम प्रभु के कटोरे पर ध्यान दें और उसको अपने जीवन में पवित्र माने और उसके लिए अपने आप को तैयार करें. क्योंकि दुनिया में बहुत सी बातें जो हमें बरगलाती हैं, हमें अच्छी लगती है, लेकिन वो कहते हैं ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन अंततः हमारे लिए क्या ठीक है? प्रभु का लहू जो मेरे लिए बहाया गया. और इसलिए हमें बहुत ध्यान रख. और लिखा मेज जहाँ पर उसकी रोटी रखी है, उसका बदन रखा है मेरे लिए. उसके लिए मुझे अपने आप को तैयार करना है. परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे कि इन वचनों के अधिक आत्म अर्थ को हम जाने. आज हमने बहुत ही संक्षेप में इन 7 बातों को देखा मित्रों, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने घरों में इस पत्री का अध्ययन करें और खास करके इसको पढ़ें. और अगले रविवार को प्रभु ने चाहा तो हम इसी अध्याय के यानी 11 अध्याय पहले कुरिन्थी के 23 पद से उसके आगे तक देखेंगे. उसके आगे तक देखेंगे जहाँ हमारे लिए बहुत सी बातें लिखी हैं. 10 अध्याय 23 से 33 पद तक हम देखेंगे. Next Sunday, if God will allow me, I will definitely preach on 1 Corinthians chapter 10, 23rd to 33 verse. And they will see more things for our spiritual life. प्रभु की स्तुति आज के सुंदर समय के लिए मैं चाहता हूँ कि इन बातों पर हम ध्यान दें, गौर करें, ताकि हमारे जीवन से बढ़ता चला जाए और इसराइलियों की जो यात्रा है हमारे लिए एक प्रकार से उदाहरण बने. हम उनके तमाम बातों पर गौर करें
कभी प्रभु ने चाहा तो हम इस पूरे यात्रा का अध्ययन करेंगे. इफ गॉड will make possible for us, we'll study the entire episode of the Israelites' journey from Egypt to Canaan. And there are many halts, there are many incidents that took place, and each incident speaks to us for the different aspect of Christian life. आइए हम धन्यवाद दें, आइए हम प्रार्थना करें. धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, आप जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान हैं, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के प्रभु जो आज हमारे सामने पढ़ा गया, आज इस पर हमने गौर करा. हम चाहते प्रभु कि इन वचनों को हम और ध्यान से देखें प्रभु, और आप में बढ़ते चले जाएं. जो पाठ आज पढ़ा गया, जो वचन हमने देखा प्रभु, उनकी आत्मिक सच्चाई को जीवन के अंदर महसूस करें और आप में बढ़ते चले जाएं. वचन का बीज जो आज बोया गया प्रभु, वह व्यर्थ न जाए, पर पवित्र आत्मा प्रभु उसको हमारे हृदय के अंदर प्रभु लिख डाले, ताकि 7 बातें प्रभु हमारे जीवन के अंदर हमारे लिए लैंडमार्क बन जाएं और उस पर हम ध्यान देते हुए आप में आगे बढ़ सकें. ये धन्य कलीसिया की मदद करें प्रभु जी, एक एक जन की मदद करें. हमारे हर एक माँ बाप के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रौढ़ के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु. हर एक की सहायता मदद करें. वचन के बीच जो बोया गया प्रभु हमारे हृदय रूपी खेत के अंदर प्रभु, ये फलवंतित हो और इसमें 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न हो सके. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन. परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर वचन के लिए. जबकि परमेश्वर महान है और वास्तव में परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य को करे ताकि हम परमेश्वर के नाम को महिमा दे सके. अब ये वक्त होगा, हम अपने आखिरी गीत को गाएंगे जो कि पाया जाता है हिंदी गीत नंबर 155, यीशु रंग सलीब के पास चश्मा जहां बहता. और ये ऑफरेटरी सॉन्ग भी होगा. हम अपने घरों के अंदर इस गीत के दौरान अपनी ऑफरिंग्स को हम जमा करेंगे, और जब चर्च खुलते हैं तो जब हम आए, अपने ऑफिस खुले हुए हैं, अपनी ऑफरिंग्स को हम वहां पे जमा करेंगे. एंड नाउ we will collect our offerings by our own selves during this song, which is found in Hindi, song number 155, यीशु रक्त सलीब के पास चश्मा जहां बहता. Let us glorify God by singing this song. Build
Thank you, dear gracious Heavenly Father, for the wonderful blessings that you bestowed upon us through Jesus Christ. Lord, I pray for each and every one of us, Lord, as we put, Lord, and as we offer our blessings unto your feet, Lord, bless them mightily, abundantly. So, Lord, these offerings may acceptable unto you, and also it will be used for your glory, Lord, and for your extension of your kingdom through this church. Lord, thank you for such wonderful blessings. Thank you for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. अजीजों, अब ये वक्त होगा चर्च अनाउंसमेंट्स का, और जो चर्च अनाउंसमेंट्स हैं वो रेवरेंड डॉक्टर जॉन विश्वास के द्वारा हमारे बीच में सुनाए जाएंगे, और उसके बाद क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन के साथ हम सब रुखसत होंगे. Now it's time to hear the church announcements by Reverend Dr. John Vishwas, and followed by closing prayer and benediction. प्यारे भाई बहनों, जो सूचना है हमारे कलीसिया के इस प्रकार से है, जो हमारी वर्शिप होती है रविवार की, इसी प्रकार से होती रहेगी हर रविवार को सुबह 10 बजे. इसका एक कारण यह है कि जो हमारा एरिया है ये रेड लाइन एरिया है, इसलिए यहाँ जो स्थिति है बाहरी रूप से वो अभी कंडीसिव नहीं है, सेफ नहीं है. दूसरी बात यह है कि 100 लोग आएंगे आराधना के लिए, उसमें 60+ नहीं आ सकते हैं, 10 साल से नीचे बच्चे नहीं आ सकते, और इसलिए बहुत सोच समझ के अभी हमने ये सोचा है कि अभी कुछ और संडेज तक हमारी आराधना लिंक के द्वारा होती रहेगी. जब सामान्य हो जाएगी स्थिति तब आराधना शुरू करेंगे, जब सेफ्टी हो जाएगी तो शुरू करेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस अभी उसका रूप विकराल हो रहा है और बहुत से केसेस आ रही हैं. इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आप अपने घरों से निकल कर यहाँ आए और कल को समस्या हो जाए. इसलिए हम थोड़ी देर के लिए और इसको रोकेंगे, आराधना को, जो पब्लिक आराधना है, आप घर में ही इसमें भाग लें. डियर फ्रेंड्स, फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन नाउ व्हाट वी हैव इन दिल्ली, स्पेशली आवर साउथ दिल्ली एरिया, आरकेपुरम एरिया, this is on red zone, and therefore we have to delay for some more Sundays, and we'll continue our worship on every Sunday by link, and the time is 10 o'clock. And after we have reviewed the situation, we will let you know, but definitely some more Sundays will take, and we need to have a little more patience. Because another thing is not only 100 people worshipping together, but the 60+ will not come, and 10 minus children will not come. And therefore, when you think everything, half of the congregation will not be allowed to come, and therefore we decided to have our worship as we are having now by link up to few more Sunday at 10 o'clock every Sunday. Every Sunday at 2 o'clock we have MWIFE meeting by Zoom. हमारे MWIFE के बच्चों की मीटिंग होती है हर संडे को 2 बजे से दोपहर को, वो चालू रहेगी. और सेकंड सैटरडे को हमारे WCS के बहनों की मीटिंग होती है. समय है शाम को 4 बजे, वो यथावत होगी. We'll have a WCS meeting every second Saturday, and it will continue. And then also we have Sunday school every Sunday at 4:30 by Zoom. It will continue. So please remember. And now we are having every day Bible study. We are having alternate day. After one day we are having, so we are making gap for one day. Every alternate day we have Bible study at 7:30. That will continue. And second Sunday and fourth Sunday we have Bible study evening. Sunday. बुक ऑफ डैनियल, इट विल कंटिन्यू. हमें अपने कलीसिया के एक एक परिवार की प्रार्थना करनी है.
एक एक बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करनी है, एक बच्चे के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि इनके अंदर इम्यूनेशन ताकत कम है फिजिकली, कि प्रभु उन्हें स्वस्थ रखें और अच्छे से रखें, शांति में रखें। और एक एक घर के लिए प्रार्थना करनी, खासकर बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके जॉब चले गए, कुछ की सैलरियाँ आधी हो गई। हम प्रार्थना करें प्रभु अनुग्रह करें ताकि हर एक के घर के अंदर पर्याप्त भोजन वस्तु रहे, किसी बात की कमी ना हो। फिर भी अगर ऐसा कोई परिवार हमारे चर्च में कि आपको कोई तकलीफ है राशन की, तो मैं चाहूँगा आप संकोच ना करें और हम दोनों पासवान यहाँ पर आए। हमारे 2-3 ले लीडर हैं, आप जानते हैं, जो हमारे ले प्रीचर्स हैं, आप उन सबको जानते हैं, आप उन्हें बता दें और आपको बुला के जो राशन आपको चाहिए काइंड में आपको दे देंगे, ताकि आपके घर में ऐसी कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ प्रार्थना करते रहें हमारे असिस्टेंट पास्टर शैरन सावंत के लिए, जिन्होंने इन दिनों बड़ी जिम्मेदारी के साथ सारे कामों को करा। पास्टर कमेटी के लोग धन्यवाद दें हमारे भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपना सहयोग दिया। हम प्रार्थना करें भाई मान कुमार के लिए। इस समय 2-3 दिन से उनका ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है, तो हमने उनको कहा कि आप घर में आराम करो। वो 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रहे, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस मैटर है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं चाहूँगा कि आप पास्टर मान कुमार के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु उनको ठीक करे और पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए। हमारे कलीसिया के जो हमारे भाई बहन काम करते हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करें ताकि हर एक जन स्वस्थ रहे, प्रभु में शांति में रहे और जो सेवा प्रभु ने हमें दी उसमें आगे बढ़ते चले जाएं। हम प्रार्थना करें हमारे देश के अगुओं के लिए, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्यपालगण, हमारे मुख्यमंत्रीगण, हमारे पुलिस के लिए, हमारी सेना के लिए, कि जो जिम्मेदारी इन दिनों में उनको दी जा रही है उसमें वो विश्वास योग्य रहे और प्रभु के भय में होकर के इस देश को आगे बढ़ा सके। हमारी शुभकामनाएं, हमारी प्रार्थना उन सब के लिए। हम प्रार्थना करें हमारे दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस और MCI के बिशप सुबोध सिंह मंडल साहिब के लिए, मैडम सुजीता मंडल के लिए, हमारे सेक्रेटरी रेवरेंड सुचित दास के लिए, हमारे कॉन्फ्रेंस ट्रेजरर रेवरेंड वरिंदर कुमार के लिए, हमारे कॉन्फ्रेंस ट्रेजरर सेक्रेटरी रेवरेंड अश्विनी फ्रांसिस के लिए और तमाम हमारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स के लिए कि जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, बनाए जाते हैं, वो सुचारू रूप से पूरी किए जाएँ और हर प्रकार से प्रभु की महिमा से। हम प्रार्थना करें हमारे बोर्ड ऑफ लेटी के लिए, मिस्टर अनिल नथानियल के लिए, उनकी टीम के लिए कि प्रभु उन पर अपना हाथ रखें ताकि जो सहयोग वो करते हैं कलीसिया में, हमारे रीजनल कॉन्फ्रेंस में, उसमें वो कामयाब हो और हमारी प्रार्थना उनके साथ। आज की आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे भाई प्रकाश बिग्गा के लिए जो पिछले 6 महीनों से बिना नागा आराधना में हमारी मदद करते हैं और कंपाइलिंग में, इसको पोस्ट करने में बहुत बड़ा लंबा काम है, TDS वर्क है। उन्होंने अभी तक करा है, आगे भी कर रहे हैं, इसको धन्यवाद देते हैं। हमारे क्वायर के लिए, हमारे बैटल्समैन के भाइयों के लिए, जवानों के लिए, अम्बाइब के, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो इसमें हमारी मदद करते हैं। हालांकि उनकी मदद कई बार दिखती नहीं, लेकिन उनकी मदद के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हर एक परिवारों के लिए। आपने बहुत ही विधिवत रूप से अपना चर्च फंड दिया है, जमा करा है, करते रहें। जो ऑफरिंग आप घर में जमा करते हैं आराधना के दौरान, उसको आगे जमा करें ताकि प्रभु के घर में, प्रभु के भवन में किसी वस्तु घटी या कमी ना हो। आज जो हमारे सामने लैंड के बारे में लीगल समस्याएं हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु हम पर अनुग्रह करे ताकि उसका समाधान हो जाए और किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ये आपकी कलीसिया है, ये प्रभु की देह है, ये उसका राज्य है। हमारा सहयोग प्रभु के इस काम को आगे बढ़ाए, ये हमारी आपसे प्रार्थना है और आपसे हमारी यही अपेक्षा है। आइए हम सब खड़े हो जाएं और प्रभु के आशीष वचन को प्राप्त करें। प्रार्थना के बाद हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते आज की आराधना के लिए प्रभु जी। बहुत अच्छी आराधना हुई प्रभु, हमने आपकी महिमा के गीत गाए प्रभु, हमने आपके वचन को पढ़ा प्रभु, आपके वचन पर ध्यान दिया। आज के वचन के लिए प्रभु और तमाम आयोजन के लिए जो आज की गई प्रभु आराधना में, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे पासवान को छुआ प्रभु और आपने आश्चर्य रूप से प्रभु चंगाई दी। थैंक यू लॉर्ड दैट यू हैव टच्ड आवर पास्टर in a miraculous way, Lord, as the answer of many church members.
many prayer partners. And today, your servant is standing here. We thank you, Lord. We know, Lord, that you are a Jehovah Rapha, who heals us, Lord. And therefore, we want to say with King David, "O my soul, bless the Lord, and not forget all his benefits." We thank you, Lord, for many people, not only here in our church, but many people around the country, Lord, are praying for this servant. We pray, God, let all this prayer be heard, Lord, and not for only your servant, but for everyone, Lord, who are sick and weak. We pray, God, let your touch be there. We pray for Pastor Mankumar, touch him and heal him, Lord, and pray for each and every one, Lord, who are connected to this blessed congregation. Lord, let your grace be upon all of us. Pray for our church leader, our bishop, and Bishop Mandal, Mrs. Mandal, and each and every one of our executive board members and our country leaders. Lord, your grace and mercy be upon us. Thank you, Lord, that you heard our prayer. We thank you, Lord, for every blessings that you have given to us. Lord, every day you bestow your spiritual nourishment to us, Lord, spiritual manna to us, Lord. And we see in our lives, Lord, how you have blessed us, Lord, and enriched each one of our lives. We pray for Mr. Harris, who is still having his dialysis. We pray, Lord, stretch for your holy hand and heal him completely, Lord. We pray for the other who are not well, especially pray, Lord, for General Joseph, Lord. Be with him, Lord, because he's quite old in age. We pray for our mother, Lord, who is also quite old in her age, and all those who are old. Lord, stretch for your holy hand. Let the covering of your blood be around them, Lord, so they live happily, healthily, and able to exalt and magnify your name. We thank you, Lord, for the entire congregation of Athasal Methodist Church, and we pray, God, Lord, bless our district of South Delhi, and bless each churches. And Lord, let us grow in you day by day. Lord, you remove our fear, remove our apprehension, remove the panic of this coronavirus, this COVID-19. And I cast down this virus of coronavirus in the hell of fire. Lord, let it cease from this world. Let world may live a normal life, peaceful life, and glorify your name. Thank you, Lord, that you heard our prayer. In Jesus' matchless name I pray. Amen. Let us receive the benediction. And now, with the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit, rest and abide with all of us, now and forevermore. Amen.